Okay. So last class में we studied about the how modulo congruency जो होती है, congruency modulo, how that is an equivalence relationship, right? And now we'll straight away jump into questions. So we'll be following Agrawal sir की book, right? And this is the question. ये question दिखने में बहुत बड़ा सा लगता है, but it's a very simple question. Find the remainder. Find the remainder when the following is divided by क्या नंबर है, divided by is divided by कौन सा नंबर है, 6, राइट. ओके, तो वी हैव अ नंबर हियर और हमें पता करना है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 6 व्हाट विल बी द रिमाइंडर. एंड नाउ दिस नंबर इज अ ह्यूमंगस नंबर, राइट. तो दिस इज द नंबर 987 प्लस 876 प्लस 765 प्लस 654 प्लस 543 प्लस 432 प्लस 321 प्लस 210, राइट. हो सकता है कि बीच में आई मस्ट हैव डन सम मिस्टेक, एज इन नंबर लेते समय कुछ हो सकता है कुछ अलग हो जाए, बट देन इट डजंट मैटर. व्हाई? बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. सो दिस इज अ ह्यूमंगस नंबर and we won't be adding this, right, because we will be using the concept of modulo, right. तो we need not add और उसके बाद बैठ के फिर divide करो 6 से, right. So let me call this number as y and this number is to be divided by 6, right. So in the form of arithmetic modulo इसको कैसे लिख सकते हैं? We have this is the dividend, so we have y is congruent to the remainder, right. The remainder is what we are interested in. So let me call this remainder as capital small r, right. And modulo n में n is our 6, right. So this is the expression over here. So we'll make use of this expression. See, we need to find the remainder, right. तो ये जो होगा वो यहाँ आना चाहिए, okay. But then we could change this because we know that congruency modulo is symmetrical, right. तो symmetrical का मतलब क्या होता है? y और r को एक साथ interchange कर सकते हैं, and hence this would be r is congruent to y modulo 6 और ऐसे में हमको रिमाइंडर मिल जाएगा. we need not divide करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. okay, so we have y modulo 6 over here, right. तो मैं इसको लिख देता हूँ. I could write this, 432 है, yes 432, hopefully ये 432 है, 432 है ना, 543 432, yes. okay, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है मॉड ऑफ 6, राइट. ये समझ में आया ना? ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. क्योंकि जो रिमाइंडर हमको रिमाइंडर निकालना है, तो आप लोग ये बोलते हैं कि ये तो रिमाइंडर नहीं है, राइट. तो रिमाइंडर मॉडुलो n होता है ना, तो मैंने रिमाइंडर को और डिविडेंड को मैंने इंटरचेंज कर दिया. ओके, सो नाउ इसके ऊपर मैं कौन सा रूल यूज करूंगा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी का. तो यू कुड डिस्ट्रीब्यूट मॉड 6 टू एवरी सिंगल नंबर, राइट. डिस्ट्रीब्यूटिव का यही मतलब होता है. एंड इसका प्रॉपर्टी लिखना है कि मैं साइड में कहीं पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टी इज द फॉलोइंग, दैट इफ a प्लस b मॉड n है, right, in that case you could distribute it, that means दोनों को दे सकते हैं. so we have a mod n plus b mod n, right. तो ये ओके, ये y लिख देते हैं, राइट. तो मुझे क्योंकि इसका बहुत बड़ा करना है, मैं मिटाऊंगा, एक एक करके इसकी मॉड की वैल्यू डालते जाते हैं, राइट. तो इमेजिन कि ये मॉड यहाँ पे है. सो लेट मी हैव दिस 987 mod 6,
right? So what is the value of this very expression? This is congruent to what? जब आप इसको डिवाइड करोगे द रिमाइंडर, राइट? सो दिस इज 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 3 8 3 इंटू 3 38, राइट? सो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, राइट? तो you're left with 2 and then 27, तो 6 4 जा 20 24 and you have 3 as the remainder. So let me write this as 3, right? मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पे. एंड देन वी हैव 876 mod of 6. सी यू गाइज आर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, तो तुम लोगों को बहुत फास्ट होगा. आई एम वेरी स्लो, so आई बी टेकिंग माई टाइम, तो तुम लोग वीडियो बढ़ा सकते हो जो भी. सो you've got 876 years, right? So 6 1 are 6, then you have 2 27, so we've got 6 4 are 24 and 36, so 6 6 are 36. You are left with what? 0 as the remainder. Then we have over here 765 modulo 6, which is equivalent to 6 1 are 6, then you have 16, right? So 6 2 are 12, right? 12, तो कितना बचा? 4 45, तो we have got 6 7 are 42, right? And you have 42 मतलब 3, okay, right? And then we have 654 mod of 6. So this is 6 1 are 6, right? Then you have 6 zeros are, तो 54 आ गया, तो 9 6 54 होता है, राइट? तो we have got 0 again, मतलब ये मॉडुलो 6 ऐसे चलेगा. Then we have क्या है ये 543, right? So we have 543 here. Modulo 6 is congruent to, we have 6 कितना 9s are 54, right? And you're left with 3. So this is 3 modulo 6. Okay. Then we have 432 over here. So this is 432 modulo 6, which is congruent to 6 6 are 36, 6 7s are 42, and 1 or 12, 6 2s are 12. So this is 0 mod 6. So let me erase this here, जिससे कि स्पेस रहे हमारे पास. इसकी ज़रूरत नहीं है, तो let me. Okay. Then we have 321. We have 321 mod 6 as congruent to 6 5s are 30, right? And 2 bacha and 1, to 6 12, 6 3s are 18, and you have 18 plus 2 20 and 1, so you've got 3. So again this is 3 modulo 6, and then we have 210. So this is 210 mod of 6, which is 6 12, 6 3s are 18, so you have 19 20 21 3, to 6 5s are 30, so you have 0 mod 6, right? Now what you do is, क्योंकि अपन ने ये ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अब, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ स्पेस हियर ऑन द बोर्ड, और मिटाते रहूँगा तो दिक्कत है. सो दिस वेरी मॉड्यूलस 6 कुड बी रिटन ओवर हियर एवरीवेयर, अंदर जाके, ठीक है? इन दैट केस वी हैव दिस वैल्यू ओवर हियर, एंड लेट मी जस्ट राइट दीज थिंग्स. ओके, सो दिस वेरी एक्सप्रेशन changes to 987 mod, this is 3 mod 6, so this is 3 mod 6, plus you have 0 mod 6, then we have 3 mod 6 again, then we have 0 mod 6, then we have 3 mod 6 again, then we have 0 mod 6. यहाँ पे शायद वीडियो में आएगा नहीं, सो जस्ट देख लेना कितना 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 है. एक बार 3 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0, फिर 3 प्लस 0, फिर से 3, and again you have got 0 mod 6, right? Okay, so now this is congruent to
ओके, सो वी हैव 0 mod 6, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 है, तो डन, ये तो 0 हो जाएगा। एंड फिर ये 0 mod 6 है, अगेन 0, 0 mod 6 0। 3 mod 6 का मतलब क्या होता है? 3 mod 6 का मतलब होता है कि रिमाइंडर इज 3, राइट? सो इट रिमेन्स, if this is 3 mod 6, then the value of this very thing would be 3. Why this is so? यहाँ पे इसको मिटा देते हैं अपन। जैसे कोई नंबर है, उसको अपन ने डिवाइड किया एंड वी ऑब्टेन ओवर हियर 3 से 6 डिवाइड किया एंड देन वी हैव गॉट 3 ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द लास्ट रिमाइंडर, है ना? इसके नीचे और नहीं जाने वाला है, बिकॉज वी नो दैट द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी लेस देन दिस डिवाइजर, देन दिस इज वेयर द डिविजन एंड्स, राइट? सो यू हैव 3 हियर, है ना? तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 3 mod 6, 3 mod 6 और 3 mod 6। ओके, सो आई हैव 3 mod 6 प्लस 3 mod 6, और ये ऐसे जा रहा है। इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है ये वाली वैल्यू। सो दिस इज y, एंटायर y, ये पूरा कॉन्ग्रुएंट टू वी हैव कितने 3 mod 6 कितने हैं यार? 1 2 3 और 4। ओके, सो वी हैव 3 mod 6 प्लस 3 mod 6 प्लस 3 mod 6 प्लस 3 mod 6, बाकी जो है 0 हो गए, राइट? और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है, तो इसको इक्वेशन में चेंज मत करना। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। इन दैट केस वी हैव ओवर हियर, दोबारा से हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का उल्टा वाला लगाएंगे। सो mod 6 को कॉमन उठा लेते हैं, तो you'll have over here you'll have 3 plus 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3, and here we have mod 6, right? So again this is congruent to, this is how much? 12 mod 6, right? So this is 12 mod 6, and what is the value of 12 mod 6, right? तो 12 रिमाइंडर जो होता है, अगर मान लो कि आपने क्या किया, सपोज 6 से अपन ने डिवाइड किया किसी नंबर को, अच्छा खासा बड़ा सा नंबर, एंड यू हैव अ रिमाइंडर ओवर हियर विच इज 12, राइट? तो यहाँ पे इस रिमाइंडर को छोड़ेंगे नहीं। वाई? बिकॉज जो भी नंबर आया है यहाँ पे, उसके बाद जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस यू विल बी गेटिंग 12 एंड यू विल बी 0, राइट? और यहाँ पे भी कुछ नंबर रहेगा, लेट्स से एक्स वाई जो भी। ओके, सो रिमाइंडर जो है, वी वोंट लीव द रिमाइंडर 12, इन दैट केस दिस टर्न आउट टू बी 0, so this is 0, right? So we have this entire expression reduced to congruency 0 mod 6, right? That means remainder 0 aa raha hai. So what is the remainder when you have this thing, when you this humongous number, jab aap usko divided by 6, then what is the remainder over here? We have the remainder as 0. That means it's completely divisible by 6, right? दोबारा बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया, इसको हमको डिवाइड करना था, राइट? लेकिन हमने, मतलब ये जो क्वांटिटी है पूरी, वो डिविडेंड में आनी चाहिए थी, बट देन बिकॉज वी आर डीलिंग विद मॉडलो, अर्थमेटिक मॉडलो, तो हमने क्या किया, उसको इंटरचेंज कर दिया, राइट? तो यहाँ पे इसको रिमाइंडर में लेके आए, और क्योंकि ये रिमाइंडर में लेके आ गए, तो फिर इसमें मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई हो जाएंगी। तो हमने एडिशन वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको अप्लाई किया, एंड देयर आफ्टर वी हैव द आंसर। और उसमें ये प्रॉपर्टी याद रखना कि मॉड्यूलस के साइड में जो नंबर है, इफ इट इज लेस देन n, in that case the value will be that very remainder, right? So this is 0 modulo 6, which is nothing but 0. Okay, तो अब in the next class we'll look into multiplication वाला, right? if अगर multiplication का साइन है इनके बीच में, एंड तो आई वुड रिकमेंड यू कि किताब में जो वो दिया हुआ है, फॉर्मूले नहीं, जो रूल्स देके रखे हैं, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस कर पाएँ। ओके, थैंक यू।